हेलो हेलो। कल हम लोग बहुत सी बात किए थे। पहला बात हुआ था ये चीज कि जो भी कार्बन यूज होगा वो कैसा हाइब्रिडाइज होगा, और जो बॉन्ड होगा लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच में वो कैसा होगा, वीक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा? वीक कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। बहुत बढ़िया। और लिविंग ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं? लिविंग ग्रुप कैसे डिसाइड कर, कह रहे हैं कि यूट्यूब पे जो डाले उसको एक बार देख के आया करो सब। लिविंग ग्रुप देख लो। लिविंग ग्रुप किसको बोलेंगे, कब बोलेंगे? मतलब कार्बन के रिस्पेक्ट में उसका औकात क्या रहेगा? ज्यादा। अच्छा, यह रिएक्शन कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। कितना स्टेप में? 2 स्टेप। क्योंकि जब तक लिविंग ग्रुप जाएगा नहीं तब तक न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं। अगले पॉइंट पे लगाइएगा। जिनका भी पहला क्लास है थोड़ा अगल बगल में कॉपी में देखो कहां तक पढ़ा है। तीन ही पॉइंट में है। ठीक है, 5-6 नंबर पॉइंट में लिखिएगा तो देखेंगे। लिविंग ग्रुप इज डिटरमाइंड, लिविंग ग्रुप इज डिटरमाइंड, लिविंग ग्रुप इज डिटरमाइंड, लिविंग ग्रुप इज डिटरमाइंड, is determined by the help of by the help of by the help of by the help of difference between by the help of difference between electronegativity, difference between electronegativity and electronegativity and electronegativity and reactivity between substrate carbon and substrate carbon and substrate carbon and living group. It means यहां से कंटिन्यू हो। It means more electronegative elements which bonded with substrate carbon element which bonded with substrate carbon we called substrate carbon we called nucleophile, sorry, we called living group, we called living group. लिविंग ग्रुप आप उसको बोलोगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में? कार्बन के रिस्पेक्ट में। क्लियर नहीं आता? नेक्स्ट पॉइंट में आना। दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप। दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप। दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप। TWO, 2 स्टेप।
टू को डार्क करिएगा एकदम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, हाँ स्टेप। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इन फर्स्ट स्टेप, इन फर्स्ट स्टेप, इन फर्स्ट स्टेप carbocation is formed. In first step, carbocation is formed. In first step, carbocation is formed. Carbocation is formed. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना, hybridization is changes from, hybridization is changes from, changes from sp3 to sp2, sp3 to sp2, क्या क्या है, sp3 to sp2, इन दोनों को ऐसे बॉक्स में लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, चाहे उसी में कंटिन्यू रहो, बिकॉज sigma bond is breakdown, because sigma bond is breakdown, because sigma bond is breakdown, because sigma bond is breakdown। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, in first step, in first step, in first step, weak covalent bond is break, weak covalent bond is break, weak covalent bond is break, is breakdown, weak covalent bond is breakdown, weak covalent bond is breakdown। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, in second step, in second step, in second step, ionic bond is formed, in second step, ionic bond is formed, ionic bond is formed, ionic bond is formed। अगले पॉइंट में लिखना, ionic bond is formed, उसे कंटिन्यू रहो, ionic bond is formed between हाँ उसी में, between substrate carbon and nucleophile, substrate carbon and nucleophile, सब समझाएंगे पर लिखते चलिए। नेक्स्ट पार्ट में लिखना, in second step, hybridization changes from, in second step, hybridization changes from sp2 to sp3, sp2 to sp3, because a new bond is formed, because a new bond is formed, because a new bond is formed, is formed। अगले पार्ट में लिखना, we know that sp2 hybridized carbon containing molecule is planar in nature, that's why nucleophile attack
nucleophile attack in two sides, in two sides, TWO, two sides, either up the plane, either up the plane, either up the plane as well as either up the plane as well as down the plane, as well as down the plane, down the plane, either up the plane as well as down the plane. अगले पार्ट में लिखिएगा, due to this bond formation, due to this bond formation, due to this type of bond formation, due to this type of bond formation, due to this type of bond formation, we commonly called umbrella flipping, commonly called umbrella flipping. umbrella flipping को बॉक्स में लीजिएगा, umbrella flipping, फ्लिप करना, flipping, umbrella flipping, ठीक है, we call umbrella flipping. आगे पार्ट में लिखिएगा, molecularity of the reaction, molecularity of the reaction, molecularity of the reaction, is determined by the help of, number of reactant participate, number of reactant participate, ठीक है, number of reactant participate in SN1 reaction, number of reactant participate in SN1 reaction, ये और उसके ब्रैकेट में लिख लो चैप्टर नंबर 4. इसे जो मॉलिक्युलरिटी है ना वो चैप्टर नंबर 4 से हम लोग क्लियर करेंगे. अगले पार्ट में लिखना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज वन, 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 it is determined by rate law equation, rate law equation को इन्वर्टेड का बंद करके बॉक्स में लीजिएगा. ये भी चैप्टर नंबर 4, मतलब मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर हम लोग डिसाइड कब करेंगे, चैप्टर नंबर 4 से करेंगे जब हम लोग वहां पढ़ाएंगे तो, ठीक है. और भी बहुत सारे पॉइंट है, अभी पहले हम लोग इतने को समझ लें. देखिए हल्का से हिंट कर दे रहे हैं क्योंकि पढ़ाना हमें को है तो बता दे. देखिए मॉलिक्युलरिटी मतलब क्या होना कि जितने लोग भी हो ना ये सब मॉलिक्युलरिटी हो, ठीक है. जितने पार्टिसिपेंट है ना वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, मॉलिक्युलरिटी कहलाएंगे, ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है. अब इसमें से कौन सेलेक्ट होगा, कौन रिजल्ट लाएगा, ये हमारा ऑर्डर होगा. मतलब बिफोर द रिएक्शन हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करेंगे, और एट द रिएक्शन हम क्या डिसाइड करेंगे, ऑर्डर डिसाइड करेंगे. मतलब रिजल्ट के दिन ऑर्डर डिसाइड होगा और एग्जाम के दिन क्या डिसाइड होगा, मॉलिक्युलरिटी डिसाइड होगा. कोई डाउट है तो बोलिएगा. ये चीज के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4. जैसे 10 हॉर्स को दौड़ाया गया, 10 घोड़े को दौड़ाया गया, ये 10 के 10 क्या हुए, मॉलिक्युलरिटी हुए. क्या हुए, मॉलिक्युलरिटी हुए. अब इस 10 में से कौन 1 रैंक आएगा, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, ये कब डिसाइड होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा.
जब रेस मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन टॉप किया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो एट द रिएक्शन अगर हम लोग को बात करना है तो हम लोग किसका बात करेंगे? ऑर्डर का बात करेंगे, ठीक है। बिफोर द रिएक्शन किसका बात करेंगे? मॉलिक्युलरिटी का बात करेंगे। जितने पार्टिसिपेंट हैं वो मॉलिक्युलरिटी में आएंगे, और जब पार्टिसिपेंट जब सेलेक्ट होकर वापस जाएंगे तो वो क्या होंगे? ऑर्डर होंगे। क्लियर है? 10 में से 5 सेलेक्ट हुए, मतलब ऑर्डर क्या हुआ? 5। क्लियर है? लेकिन मॉलिक्युलरिटी कितना हुआ? 10। क्लियर है? अब देखिए जो जो चीज हम लिखे हैं ना उसको हम एक बार विचार कर लेते हैं। कल कितने लोग नहीं आए थे? थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा, हो सकता है नहीं भी है, उस पे से देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। चलिए देखिए इधर, कल हम लोगों ने क्या किया था? ऐसा कार्बन लिए थे, यहाँ पे कौन था? लिविंग ग्रुप था, यहाँ पे कौन था? न्यूक्लियोफाइल। देखो ये रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा इसको हम लोग को यहाँ दिखाना। तो ये रिएक्शन जो होता है ना 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में क्या होता है कि ये जो चीज ऐसा है, यहाँ पे कौन है? लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग ग्रुप यहाँ से हटता है, तो इसके हटने का रेट, जैसे तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तुम अपने दोस्त से बातचीत करोगे, तो पिताजी का घर से बाहर जाना डिपेंड करता है उनका मूड कैसा है, ठीक है, और इनका मूड डिपेंड करता है कि बाहर का न्यूक्लियोफाइल कैसा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडेशन शो कर रहा है? sp3। यहाँ से लिविंग ग्रुप को क्या किया गया? यहाँ से निकाल दिया गया, तो Lg के ऊपर क्या बनेगा? माइनस। अब ये रहा कार्बन। अब यहाँ पर जो पहले 4 सिग्मा नजर आ रहा था, अब कितने सिग्मा नजर आ रहे हैं? तो जब सिग्मा हमारे पास 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। क्या आएगा? sp2। s की पावर 1 p की पावर 2, 2 + 1 कितना? 3। और sp3 वाले में s की पावर 1 p की पावर 3, तो 3 है 4। मतलब नंबर ऑफ सिग्मा हमारा यहाँ पर कितना है? 4, और यहाँ कितना है? 3। इसका मतलब हम लोग ये बोल पा रहे हैं कि यहाँ sp3 है और यहाँ क्या है? sp2 है। तो जब एक बात बताओ, जब लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, जब लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा तो लिविंग ग्रुप तो क्या कैरी कर लिया? माइनस, और इस कार्बन पर क्या बन जाएगा? प्लस। अब ये पॉजिटिव आने से इसका हाइब्रिडाइजेशन में जो जैसे सिग्मा 1 एक टूटा ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रहा है? sp2। क्या है? sp2। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। मतलब sp2 कंपाउंड जो होते हैं ये प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं? अब ये प्लेनर है तो इसका 2 ऑप्शन बनता है अटैक करने का। कौन कौन सा अटैक करने का पॉसिबिलिटी है? तो एक अप द प्लेन से, एक डाउन द प्लेन से। देखिए वो क्या है, इससे किसी को डाउट हो तो बोलो। पहले यहां तक लिखो, मत लिखो, आगे बोलो स्ट्रक्चर। प्लेनर वाला जो बात है ना, प्लेनर वाला दिखा देना, वाइस से बनता है, याद है ना आप लोगों को? हाइड्रोजन का बाकी सेट करो, मेरे को रुकना था। अब सुनिए, sp2 हाइब्रिडेशन का क्या मतलब बनता है? ये ऐसा कुछ हो जाता है, ये डबल बॉन्डेड हुआ ना, तो आप जब कभी भी sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो शेप कैसा बनता है? वाई शेप। कैसा शेप? वाई शेप। ये ऐसे ऐसे और बीच में ऐसे लाइन खींचनी है, तो ये हमारा क्या होगा? वाई शेप होगा। कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाई शेप अगर बना तो ये क्या हुआ? प्लेनर हुआ कि नहीं हुआ? ये प्लेनर है ना। अब जब ये प्लेनर अगर है, कितने लोगों को डाउट है प्लेनर नहीं है? कितने लोग करो प्लेनर है? ठीक है। अब देखिए, जब ये प्लेनर हो चुका है तब इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है अटैक होने का। एक जो है अप द प्लेन से और एक डाउन द प्लेन से। तो नॉर्मल सी बात हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है सुनिएगा। जब आपका अटैक डाउन द प्लेन से होगा तो जैसे ही मान लो कि अगर हम मान लो बेंच के नीचे से
एक बहुत कस के हवा दे रहे हैं, बहुत कस के हवा नीचे से चला दें, तो तुम्हारा बॉडी ऊपर की तरफ फ्लिप होगा कि नीचे की तरफ होगा? ऊपर की तरफ। तो जब न्यूक्लियोफाइल डाउन द प्लेन से आता है, न्यूक्लियोफाइल जब डाउन द प्लेन से आता है तो ये अप द प्लेन शिफ्ट हो जाता है। ये पूरा जो बॉन्ड है ना, ये कहां चला जाएगा? अप द प्लेन। और जैसे ही वो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो अटैक करने के बाद तुरंत वो खींच लेता है। मतलब कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे जाकर ऐसे हो जाता, फिट हो जाता, किसी ऐसे फंस के करके टाल ले रहता है। बॉन्डिंग करना है ना, बॉन्डिंग। आप किसी चीज को मान लीजिए पकड़ के अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं, तो जैसे उसको पकड़िएगा तो उसके तरफ भी तो झटका होगा ना। समझ रहे मेरी बात को? क्या करें, ये हुक टाइप का नीचे बना हुआ है, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ गया, अब इससे टकराने के बाद ये ऐसे टाइट होता है। टाइट होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अपनी तरफ खींचेगा, ये जो बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ खींचेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये ऐसे फैल जाएगा ना। पहले ऐसे था, बोलो, और ऐसे था ना, और एकदम ऐसे था। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल नीचे से टकराया देखिए ऐसे हो गया। देखो भैया, अरे बाल्टी में पानी लेकर चलते हैं तो हाथ ऐसे हो जाता कि नहीं हो जाता? होता है कि नहीं होता? तो आप लोग भी हाथ ऐसे हो जाएगा। नॉर्मल बाल्टी को ऐसे टांग के लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, भारी वजन रहेगा। तो वैसे कंडीशन में, या फिर 2 बाल्टी लेकर चले तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ अलग ही टाइप से बिहेव करता है। होता है कि नहीं होता दोस्त? तो आपको ध्यान ये रखना है, न्यूक्लियोफाइल जब नीचे से अटैक करेगा तो चीजें जो ऐसे हैं वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है? और जैसे ही हमारा अप द प्लेन से अटैक होगा तो जो चीज ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हम समझ रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं। तो यहां पर देखो कैसे क्या होगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। अप द प्लेन से होगा तो कैसे होगा? ऐसे होगा। और डाउन द प्लेन से होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या है? आप छाता लेकर जा रहे हैं, फोन पे से बतियाते हुए साइकिल चला रहे हैं, ठीक है? अचानक से कोई ट्रक पास किया, ऐसा हवा चला ना, अचानक से बहुत तेज हवा चला तो फ्लिप कर गया कि नहीं कर गया? और जब वो बॉन्ड फ्लिप करता है तो तुम डंटी को अपनी तरफ खींचते हुए छोड़ देते हो, और छोड़ देते हो तो वो उसी की हवा के डायरेक्शन में बढ़ जाता है। न्यूक्लियोफाइल वापस इसको क्या करता है? खींचता है। कोई डाउट है तो बोलिएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है? आप उसी चीज को सीधा करना रहता है तो वापस से हम लोग डायरेक्शन बदल देते हैं ना। तो जब उधर से अटैक होता है तो वापस से फैल जाता है इधर की तरफ। तो इसको बोलते हैं अम्ब्रेला फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं? अब देखो, इसमें हमारा ये रहा कार्बन। अगर आप इसमें डाउट नहीं ना पूछ रहे हैं तो SN2 में तो नहीं है, समझ में आएगा, इसलिए डाउट है तो पूछ लो। ये कार्बोकेटाइन है, यहां न्यूक्लियोफाइल है, प्रेम बाबू, डाउट है? अब ये चीज ऊपर से अटैक हुआ, yes, एक जाएगा डाउन द प्लेन, एक हमारा इधर से अटैक होगा, एक बार में एक ही तरफ अटैक होगा तो ये ऐसा हो जाएगा नीचे की तरफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसको बोलते हैं अम्ब्रेला फ्लिप। देखिए इसको अम्ब्रेला वाला फील देते हैं, ठीक है? ये डंडी टाइप का हो गया, इधर भी अम्ब्रेला हो गया। समझ लो ना, अम्ब्रेला ऐसे ही ना बनाते हो। पूरा देख ले सना, लेकिन यार सब ऐसा बना ना। ये अम्ब्रेला फ्लिप। यही जब आपस में मिक्स हो जाएगा तो यही बनेगा रेशमिक मिक्सचर। क्या बनेगा? इसी फिनोमेनन को बोलेंगे रेशमाइजेशन। और इसी फिनोमेनन में जो होता है इसी को कहा जाता है एनेंसियोमर। क्या? एनेंसियोमर। इसी में जब हम आगे चलेंगे तो इसी में बनेगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अगला बनेगा लेबोरोटेटरी, ठीक है? और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो बनेगा इन्वर्सन। क्या बनेगा? इन्वर्सन, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद धीरे 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 एकदम इतना हार्ड होते जाएगा कि तुम्हें दिमाग हैंग कर जाएगा। अभी किसी बच्चे को डाउट है तो हाथ खड़ा करो, लिखो इसको। तो फाइनल प्रोडक्ट में आप क्या क्या दिखा रहे हो बताओ? फर्स्ट स्टेप में रिवर्सिबल साइड क्यों दिया और सेकंड स्टेप में सिर्फ सिंगल?
कुछ भी नहीं करता है साहब, इस सब को लग रहा है कि हो गया, सीख लिया, बढ़िया डाउट पूछे हो। ए वो हाँ एक हाँ भाई बोलो। सिग्मा बॉन्ड, इसे नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं? 4। थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार के चाहिए। अगर नहीं किया हुआ तो तुम सोचत निकालो, टाइट बैठे लो नहीं यार, हमारा मन ना कर कि सलाम बोली ना आज, लेकिन बोले पहला इसे डाउट ऑफ दुनिया भर का डाउट आना चाहिए। जैसे यहाँ हाइब्रिडेशन ये चेंज कैसे हुआ, तो ये तो हम शुरू में चर्चा किए हुए थे, नंबर ऑफ सिग्मा। यहाँ रिवर्सिबल क्यों है? कोई बताएगा तो हाथ खड़ा करो, तू चुप रहिए। ये यहाँ रिवर्सिबल क्यों है? सर sp2 से भी sp3 होगा, इसमें चला जाएगा। नहीं और कुछ? तू चुप रहा ना, तुम्हारा पार्ट से निकला पड़ सर, तुम लोग ठीक लड़का है। और बाकी लोग बताइए इसमें, अरे क्या लिखा दर्ज रहता नहीं कि कहीं ऑनलाइन पढ़ा था लोग, इसमें रिवर्सिबल क्यों है? और कोई बताओ, बोल रहे हुआ इसको अपना स्टेबल रखने के लिए ये पोजीशन चेंज भी कर सकते। और ठीक है, और कुछ बोलो, बोले छोटा। हाँ बोलो 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 ना, कहाँ लिखा था शेख बाबू, मत लिखा, छोड़ दो। लिविंग ग्रुप लग जाएगा ना, हाँ। तो वो अपना सिग्मा में 4 कंप्लीट कर लेगा। ये सवाल मेरा ये है, लिविंग ग्रुप को मिला जुला के ठीक बोला सर, लिविंग ग्रुप यहाँ पर ये सवाल ये है कि बच्चा का कि यहाँ रिवर्सिबल साइन क्यों दिया गया है? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं। और कुछ बोलो, नहीं मजा नहीं आया। देखिए हम 100 बार बोलते हैं, आज 101 बार बोल रहे हैं। आप पहले नंबर चीज के बैठने का तरीका में सुधार लाइए, बात समझिए। आप ये सवाल है, सवाल ये है, अब जब आंसर बनाए बताएंगे तो तुमको खुद पे खुद एहसास हो जाएगा। कोई और बोलना चाहता है? बोलो जी, कुछ बोलोगी? हमें एक बात बताओ, एक चीज समझो, तुम लोग को एक बात बता दे, लिविंग ग्रुप जो सेक्शन है इसका हटना ही खुद डिसाइड करेगा। मतलब इस फिनोमिनन में लिविंग ग्रुप जो है इसकी वजह से ही यहाँ रिवर्सिबल साइन बना हुआ है, क्योंकि इसका हटना कोई सोर्स के थ्रू नहीं हटाया जा रहा है। ये इसका हटना डिपेंड किस पर करता है? तो न्यूक्लियोफाइल वीक होने की वजह से इस रिएक्शन को क्या होना पड़ा है? रिवर्सिबल होना पड़ा है। कोई भी रिएक्शन के होने में अगर समय ज्यादा लगता है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल। क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल। लिख ला सब। कैसे सारा फिजिक्स से पढ़ा था वैसे यार। जिस भी रिएक्शन में समय बहुत ज्यादा लगता है, जिस भी रिएक्शन में समय बहुत ज्यादा लगता है, वह रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। वह रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। जैसा यहां पर, चाहे छोड़ दो, समझ देखो, वो खुद से समान है। एक अब हमारा जबरदस्ती ताल्लुक करनी पड़े। करना ये है, सभी बच्चों को वीडियो देखना है। आपने खोपड़ी मत लगाना कि व्यू बढ़ाने के लिए कर रहे हैं लोग, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो इसलिए आपको एक चीज सब लोग को बोल रहे हैं, आओ में हम क्लास लेके चलो, ये कतरा तो लोग देखने वाला लोग। इससे क्या है ना, देखो अभी लाइन तुम सब लोग एग्री करते हो नहीं करते? ये लाइन यूज किया गया है, ये है ना, इसलिए यानी कि सारे बच्चों का ध्यान क्लास में जरूर है, लेकिन बोल लेने इसलिए नहीं याद है। लिविंग ग्रुप का हटना ये खुद डिसाइड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करेगा। और देखो नॉर्मल सी बात है, पिताजी घर पे संडे को है, अब तुम किताब लेके बैठे हो, तुमको लगा कि बस पापा बेड पे बैठ गए, पता चला कि घर में आ गए। कुछ देर 5 मिनट के लिए बाहर गए, पता चला कि फिर वो आ गए। तो इनका जाना और आना समय बहुत लंबा लग रहा है, इसलिए हम लोग रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं? रिवर्सिबल। क्या बोल रहे हैं? रिवर्सिबल। और इस टाइप के स्टेप, ये टॉपिक हम उड़ाने की कोशिश करनी है, लेकिन लड़का डाउट पूछ दिया, इसलिए हमको ये बताना पड़ा। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं स्लो स्टेप। कौन सा स्टेप? और इसी स्टेप को कहा जाता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखा, कोशिश सुनिए, आपको जो भी एक पॉइंट ऑर्गेनिक में लिखवाया जाए, कोशिश आपका ये होना चाहिए उधर से एक क्वेश्चन एराइज होने चाहिए। लिखत समय को चीज ध्यान रखो, इसमें क्या हम अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस बच्चे के लिए ताली बजा दो सब, लजा लो मत, ताली बजा दो। और सुनिए एक चीज और,
यहाँ पर ये स्लो स्टेप है, क्या है? स्लो स्टेप है। ये रिवर्सिबल है लिविंग ग्रुप की वजह से। रिवर्सिबल किसकी वजह से? ऐसे क्या बैठे सर? ऐसे बैठता है सब। अरे तुम नेता होता मैं टाइट बैठे सर, हमारा नहीं है एकदम से। अच्छा बोल बोलो लोग, यहाँ कौन हट रहा है? लिविंग ग्रुप जो हट रहा है, ये धीरे धीरे हट रहा है, क्या अचानक से हट जा रहा है? धीरे धीरे मतलब स्लो स्टेप पर रिएक्शन है। ऐसी स्लो की वजह से ये क्या है? अभी काफी चेक करो तो मैक्सिमम की कॉपी में ना मिले तो क्या आरडीएस का पूरा नाम क्या है? लिख लो, आरडीएस को क्या बोलेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा समय मत लिखिए इसको भी, इसे कब चर्चा करेंगे? समय हो गया उधर, कितना मिनट? 1 मिनट है क्या? उधर मैनेज कर लोगे लोग? उधर क्लास में ना 8-3 हो गए। चलो चलो, इसी से रेट डिसाइड होगा, इसी से ऑर्डर डिसाइड। कल इस पे चर्चा करेंगे। हिम्मत नहीं करो। ए बाबू देखो, एक चीज बता रहे हैं, तुम एक मिनट एक वादा करो, सब बात से दरवाजा सेट होता नहीं तो दरवाजा सेट होता बोला। अच्छा लेके बिठा छोड़ दो, सुन मत सटे। सुनिए, हम लोग ये कर रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके थ्रू ही मेरा स्पीड बढ़ सकता है। आप कोशिश कीजिए कि क्लास में एक लाइन भी लिखो।